Good morning, my dear students. How are you all? So, I hope you all are feeling fine, and I'm also feeling very fine and excited. And today we are going to learn something new about descriptive writing. Okay, so in today's video, I'm going to tell you some important tips and important steps in writing a paragraph, a descriptive paragraph. Okay, so in this video we will revise whatever we have done in previous videos, and we will also see some examples so that paragraph writing, descriptive paragraph writing on person will be clear to all of us. Okay, students, so first thing here is, what is a descriptive writing? As I told you, descriptive means description. Okay, to tell about something, somebody, or some event. So, so what actually happens, student, when you tell someone about something or about somebody, then you do not have image of that person. If you don't have image, if you don't have, then what do? You describe about that person, place, or thing. Okay, and then you use correct words in a correct way in order so that the listener can imagine, he or she can create an image of whatever you are describing. So, for example, यू हैव नॉट सीन माई फादर, आपने मेरे पापा को नहीं देखा, बट अगर मैं उनके बारे में बताऊं, एक्सप्लेन करूं और अच्छे वर्ड्स को, सही वर्ड्स का इस्तेमाल करके बताऊं, तो आप अपनी मन में, यू कैन इमेजिन अ फिगर, आप एक चेहरा इमेजिन कर सकते हो जैसा जैसा मैं बताऊंगा. ओके, कभी कभी हम बहुत अच्छी जगह घूम के आते हैं और अपने दोस्तों से बताते हैं कि मैं यहाँ गया था, आई वेंट टू देयर, एंड देन वी टेल अबाउट दोज थिंग्स कि इस जगह पे ऐसा था, इस जगह पे ऐसी रिवर थी. सो दैट थिंग इज नोन एज डिस्क्रिप्शन. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि नाउ CBSE, इन CBSE क्लास 9 यू हैव टू डिस्क्राइब ओनली पर्सन. पहले आपको पर्सन, प्लेस और इवेंट में डिस्क्राइब करना था, बट ड्यू टू कोविड-19 अब आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है पर्सन को. ओके, so let's see again what is description. A description is a set of characteristics by which someone or something can be recognized. We can describe people, places, and events. By describing them, we make a sketch in words so that reader is able to get clear picture of the described object. A good description creates a clear mental image in the mind of a reader. So as I have already told you about description, same thing is a definition also of description. Description means किसी चीज़ के बारे में बताना, और इस तरीके से बताना है ताकि सुनने वाला उसकी एक इमेज बना सके in his mind. Okay. So as I have already told you कि अभी हमको सिर्फ people के ऊपर फोकस करना है as per the subject. So what is describing people? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी इंसान के बारे में बताते हैं, then what are the points we have to take care of? Okay, so while describing people we take care of the following points. जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, then we take care of the following points. Height, every person has different height, सबकी अलग अलग हाइट होती है, तो हम हाइट के लिए कहते हैं that he or she is tall, short, medium height, लंबा है, छोटा है, नॉर्मल हाइट है. लाइक आई हैव मीडियम हाइट, में बहुत लंबा भी नहीं हूँ, बहुत छोटा भी नहीं हूँ. देन कम्स द बिल्ट, हर किसी के शरीर की बनावट अलग अलग होती है, तो व्हाट इज़ द, लाइक वी से द फिगर, बॉडी टाइप कैसा है. सो थिन, अंडरवेट, प्लम्प, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, फैट, ओवरवेट. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा हर इंसान का अलग अलग तरह का शरीर होता है. सम आर थिन, कुछ पतले होते हैं, कुछ अंडरवेट होते हैं. अंडरवेट इन द सेंस बहुत ज़्यादा पतले, वेरी थिन. प्लम्प, कुछ लोग का बहुत फ्लफी सा शरीर होता है, फूला फूला सा, प्लम्प. स्ट्रॉन्ग, सम पीपल लाइक सलमान खान एंड ऑल द बॉलीवुड हीरोज, सिक्स पैक एब, सो दे लुक वेरी स्ट्रॉन्ग. WWE के सारे फाइटर्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. स्टर्डी, सम पीपल लुक लाइक वेरी सॉलिड, मैन ऑफ स्टील, सुपरमैन. सम पीपल आर फैट,
मोटे लोग, एंड सम पीपल आर ओवरवेट, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, about 150 kgs, 200 kgs, 250 kgs. That kind of people are overweight because उनका वजन बहुत ज़्यादा है. Next is everybody has different type of hair also. सबका अलग अलग बाल भी होता है. So long hair, short hair, curly hair, black hair, brown hair and grey hair. Very easy. लंबे बाल, छोटे बाल, घुंघराले बाल, काले बाल, भूरे बाल, ग्रे बाल. Okay. सो इफ़ यू आर डिस्क्राइबिंग एनी ओल्ड पर्सन, आप किसी बूढ़े व्यक्ति को डिस्क्राइब करोगे, देन यू कैन से ही और शी हैज़ ग्रे हेयर, उसका बाल ग्रे है, क्योंकि जो बूढ़े होते हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं. आइज़, पीपल हैव डिफरेंट आइज़ ऑल्सो, डार्क, ब्राउन, बिग, स्मॉल, किसी किसी की पूरी काली आँख रहती है. सम पीपल हैव ब्लूइश आइज़ ऑल्सो, और किसी की ब्राउन आइज़ होती है, किसी की आँख छोटी होती है, किसी की आँख बड़ी होती है. So different people have different eye size also. Then comes about complexion. Complexion means skin का color कैसा है. So some people have dark complexion. Like in Africa, you will mostly find people with dark color. Fair in England, in America, in USA, in Jammu and Kashmir, you will find people. You will find people with fair skin. वो गोरे ज़्यादा होते हैं. Whitish. अब अगेन जो इनका कलर बहुत ज़्यादा वाइट होता है, और पेल. पेल मीन्स इट्स लाइक like in India people are fair, but like some people are too much fair, जो एकदम सफ़ेद से दूध जैसे कलर के होते हैं. So those kind of color is known as pale. अदर फीचर्स, आप किसी के बॉडी में दूसरे फीचर्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल बियर्ड, किसी किसी की बियर्ड होती है, लाइक आई हैव बियर्ड एंड सम पीपल कैन नॉट ग्रो बियर्ड, कुछ लोगों की बियर्ड्स नहीं होती है, दाढ़ी. bushy eyebrows, so some people like my eyebrows, it's normal eyebrow. कुछ लोगों की बहुत घनी eyebrows होती है, तो we call it bushy eyebrow, बहुत ज़्यादा जिसकी घनी है. broken teeth, some people have broken teeth, बचपन में बहुत ज़्यादा खेल कूद करे होंगे तो जिनसे they have broken their teeth. broad chin, chin means this, कुछ लोगों की chin थोड़ी broad होती है, चौड़ी होती है. thick lips, कुछ लोगों के lips मोटे मोटे होते हैं. long face, हैव यू सीन खली? खली को देखा आपने? ही हैज़ अ वेरी लॉन्ग फेस, लंबा चेहरा. अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स लगता कैसा है. हाउ इज़ द पर्सन लुकिंग? गुड लुकिंग, अच्छा है. चार्मिंग, वेरी गुड. चार्मिंग मीन्स ऑल ऑफ द सेलिब्रिटीज़, हीरो हीरोइंस, दे आर चार्मिंग. अगली, अगली मीन्स ऐसे तो कहना नहीं चाहिए, हम सभी भगवान के ही बनाए हुए हैं. सो नोबडी इज़ अगली, बट अगली मीन्स जो अच्छा नहीं दिखता. बट आई डोंट थिंक कोई अच्छा नहीं दिखता, हम सब अच्छे हैं, हम सब भगवान के बनाए हुए. सो वी ऑल आर गुड. ओके. स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल. तो अपीयरेंस के हिसाब से आप लोगों को गुड लुकिंग कह सकते हो, चार्मिंग कह सकते हो, स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल. नेक्स्ट कम क्वालिटीज़. अब हर इंसान की अलग अलग क्वालिटी होती है, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता. किसी के पास कुछ क्वालिटी है, किसी के पास कुछ और क्वालिटी है. सो कोई सिंसियर है, इंटेलिजेंट, डिलिजेंट, वार्म, पेशेंट, सॉफ्ट स्पोकन, selfish, kind, honest, innovative, confident, and punctual. So, if you remember in previous video, we have discussed these sentences with meaning also. Discuss these words with meaning. So, sincere means जो बहुत ज़्यादा sincere है, अपने काम पे ध्यान देता है. Intelligent means who has good mind, जिसका दिमाग अच्छा हो. Diligent, जो कि भरोसेमंद हो. Warm, जो हमेशा बहुत ही ज़्यादा excited रहता हो. Patient, सब्र वाला. सॉफ्ट, जो सॉफ्ट स्पोकन, जो बहुत प्यार से बात करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, सॉफ्ट स्पोकन. सेल्फिश, सेल्फिश लोगों से दूर रहिए, मतलबी. काइंड, जो अच्छा हो. ऑनेस्ट, ईमानदार. इनोवेटिव, जिसके दिमाग में कुछ अच्छा करने की सोच हो. इनोवेटिव, जो कुछ नया करके दे. कॉन्फिडेंट, येस आई कैन डू इट, जो हमेशा किसी से डरे नहीं, वो कॉन्फिडेंट रहे. पंक्चुअल, लाइक द लास्ट वर्ड, जो हमेशा टाइम पे आए. ओके. So now what we are going to do is that before writing a paragraph, we have to keep some points in mind. पैराग्राफ लिखने से पहले हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ओके. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज पॉइंट्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज पॉइंट्स. ओके. फर्स्ट इज
So the first point is start your paragraph with a general topic sentence that introduces the person. Okay, so फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि वी हैव टू स्टार्ट पैराग्राफ विद जनरल टॉपिक। एक नॉर्मल टॉपिक से आप शुरुआत कर सकते हैं जिसमें कि पर्सन जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हो वो इंट्रोड्यूस हो, उसका नाम इंट्रोड्यूस हो। ओके, a second introduction sentence at the start of paragraph will help catch the reader's attention and shift their focus to the person you are about to describe. Keep this first sentence clear and concise, focusing on the aspect of their appearance so you don't overwhelm your reader with too much description right away. You can also split your topic sentence into two sentences for clarity and flow. Okay, so हियर इट इज सेइंग दैट अगर आप किसी के बारे में भी लिख रहे हो तो पहले लाइन में ही, इंट्रोडक्शन में ही, यू हैव टू टेल दैट पर्सन नेम, आप उसका नाम बता सकते हो सो दैट अ रीडर कैन हैव अटेंशन, रीडर का ध्यान उस पर जाए ताकि वो आपको अच्छे से पढ़े। एंड देन अदर थिंग इज व्हेन यू डिस्क्राइब दैट पर्सन, एक बार में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ टॉल, ही इज़ हैंडसम, ही इज़ फेयर, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ वेल्दी, ही इज़ रिच। अगर आप ऐसे करके लिखोगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मिक्स अ सेंटेंस। ओके, आप दो सेंटेंस करके लिख सकते हो, एक बार में सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन वन गो, यू कैन ब्रेक द सेंटेंसेस। ओके, so for example, you can see some examples. Mr. Bixler was the tallest person I had ever seen. Okay, so इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो मिस्टर Bixler. Bixler is a name, you can write any name. Is the tallest person I have ever seen. So यहाँ पे नोटिस ये करना है कि इसने डायरेक्ट नहीं लिख दिया कि मिस्टर बिक्सर इज़ वेरी टॉल पर्सन, ठीक है। सो डायरेक्ट लिख दोगे तो वो भी डिस्क्रिप्शन है बट इट इज़ नॉट सो मच इंटरेस्टिंग, वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा ना। लेकिन आप कहोगे मिस्टर ब्रिक्सल की जितना लंबा इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो आप रीडर को ये बता रहे हो मिस्टर ब्रिक्सल इज टॉल, वो लंबे हैं, बट यू आर टेलिंग इन अ डिफरेंट वे, यू आर टेलिंग इन एक्साइटिंग वे, यू आर टेलिंग इन अ इंटरेस्टिंग वे। ओके, सो नेक्स्ट इज मेलेनिन हेयर इज द बिगेस्ट थिंग अबाउट हर। सो इट्स रिटन मेलेनिन का जो बाल है उसके बारे में वो सबसे बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे वो सिंपली लिख सकता था कि मेलेनीस के पास जो है वो बड़ा बड़े बाल हैं, बट ऐसा ना लिख के उसने कहा कि मेलेनी के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो उसके बाल हैं। सो आप खुद कंपेयर कर सकते हो विच सेंटेंस इज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव। ऑफ कोर्स दिस वन, मेलेनीज हेयर इज द बिगेस्ट थिंग अबाउट हर। ओके, सो आपको भी इसी तरीके से लिखना है, यू डोंट हैव टू जस्ट राइट इट ही इज टॉल, ही इज फैट, ऐसे नहीं लिखना, आपको अच्छे से लिखना है। To understand John's thought, all you need to do was to look his hands. They never stopped moving. So इस तरीके से आपको लिखना। Okay, let's talk about the next point, the second point. Focused on the most striking part of their appearance first. Okay, so here it is saying that आप किसी को describe करते हो तो उसका सबसे striking part, जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस पर्सन में, उसके फेशियल अपीयरेंस में, you have to point out that. To hook your readers in even more, go straight from your general introduction to the most interesting or unusual part of the person's appearance. Think of this as the thing that you notice first, or that makes you the biggest impression on when you first see it. If you are writing a more creative piece like a narrative, you can also use this as your introductory sentence. For example, so आप अगर किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, सो आप ये इमेजिन करो दैट कि मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम देखा था, द टाइम व्हेन आई सॉ दैट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्या नोटिस किया था, व्हाट वाज यूनिक अबाउट दैट पर्सन, उसके अपीयरेंस में क्या अलग था, मेरा ध्यान बार बार किस पे जाता था। सो दैट थिंग, व्हाट हैपन्स इफ़ यू राइट विद दोज थिंग्स, तो रीडर का
और माइंड ज़्यादा अट्रैक्ट होगा आपके लाइन पे और वो लाइन इंटरेस्टिंग बन सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट यूजली नोटिस पीपल्स स्किन बट Natasha's glowed. So in this sentence he is saying मैं किसी की स्किन जनरली नोटिस नहीं करता लेकिन नताशा ग्लोज, शी वॉज शाइनिंग, चमक रही थी. ही मस्ट हैव सेड, वो सीधा सीधा भी कह सकता था कि नताशा की स्किन फेयर है, बट यू कैन कंपेयर शी हैज़ अ फेयर स्किन, ये लिखना, और आई डेंट यूजली नोटिस पीपल स्किन बट नताशा ग्लो. It's very much different. It was almost alien. Night could be falling as we could sitting in the darkness classroom, and I still see her out of the corner of my eye, faintly golden. So he's saying that it was dark, अंधेरा था लेकिन फिर भी हम लोग नताशा को देख पा रहे थे because she was so fair, her skin was so shiny. Sorry, don't get afraid, I'm fine. Next is, his arms looked too long for his body and disproportionately muscular, like a pale twin boa constrictor. So uh, here the writer is saying that his arms are too long for his body. उसके शरीर के हिसाब से उसके हाथ जो है वो काफ़ी लंबे हैं. वो चाहता तो सिंपल कह देता कि ही हैज़ वेरी बिग हैंड्स, उसके हाथ लंबे लंबे हैं, बट ये कुछ नए तरीके से करना है, सो दैट टू मेक इट इंटरेस्टिंग. So what you have to do, I am extremely sorry that I am coughing a little. So the main idea of this point is डायरेक्ट किसी भी बारे में लिखने से अच्छा है कि आप उसको थोड़ा अट्रैक्टिव वे में लिखो. ओके, और जो भी चीज़ आपको किसी के बारे में सबसे ज़्यादा यूनिक लगती है, यू हैव टू राइट और मेंशन दोज थिंग फर्स्ट. ओके, गॉट इट. थर्ड पॉइंट, focus on physical details that hint at the person's personality. So you have to pay attention on physical details, how the person is looking physically, which is indicating his or her personality. By carefully choosing your words, your descriptive words, your paragraph can't paint a vivid picture of the person while giving the reader a sense of who they really are. Searching for strong, resonant words that get across the point you want to make and create a tone that fits with the person. Okay. So, आप जिसके बारे में बता रहे हो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से ऐसा हिंट दो जिससे उसकी पर्सनालिटी का पता चले. ओके, सो हेयर इट्स रिटन दैट व्हेन यू यूज़ योर वर्ड्स, जब आप कोई वर्ड्स लिखती हो तो उससे रीडर को ये समझ में आता है कि आप किसकी बात कर रहे हो. सो फॉर एग्जाम्पल, शोइंग पर्सनैलिटी थ्रू डिस्क्रिप्शन, काइंडनेस और फ्रेंडलीनेस. अगर हमें ये दिखाना है कि कोई बहुत ज़्यादा काइंड है या कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो हम उसे कैसे इंट्रोड्यूस करें, हाउ शुड वी इंट्रोड्यूस, सो दैट पढ़ने वाले को ये पता चले कि दैट पर्सन इज़ वेरी काइंड और फ्रेंडली. ही हैड अ टेंडेंसी टू स्लोप हिज बैक एंड शोल्डर्स टू स्माइल राइट इन माई आईज. ओके, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग, डायरेक्ट कहना कि वो बहुत काइंड और फ्रेंडली है, इस पैराग्राफ में ऐसे कहा गया है कि वो अपने शरीर को ऐसे झुका लेता है, ऐसे पीछे कर लेता है और मुझे देख के वो हंसता है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव टू मेक योर पैरा मोर क्रिएटिव. नेक्स्ट पॉइंट इज रूडनेस. अगर आपको दिखाना है कोई रूड है तो आप कैसे दिखा सकते हो. आई होप आई एम नॉट स्पीकिंग टू फास्ट. So he towered over everyone else in the room, staring over everyone's heads as though looking for something more interesting. So he towered over everyone means somebody is looking like this, as if to looking for something more interesting. So in this sentence is saying that the person is kind of rude. Next is ambition. We have discussed ambition in the previous video. किसी का चाहत, लगन.
So she walked with energy that seemed to start in her legs, striding purposefully, and went all the way up through her hair, which swept behind her in a smooth ponytail. So here सिर्फ उसके बालों के बारे में नहीं बता रहा है, but it's also saying about her ambition. Okay, so the next point here is fill in any last detail to give good general picture. आप लास्ट में जब कोई पैराग्राफ डिस्क्राइब कर रहे हो, सो गिव मोर डिटेल्स सो दैट अ कंप्लीट पिक्चर कुड बी फॉर्म. आपको धीरे धीरे करके पॉइंट में बता पर्सन का पूरा एक चेहरा फॉर्म करना है, एक अपीयरेंस फॉर्म करनी है. सो मेक श्योर दैट your reader has good sense for the most important parts of this person's appearance. You want at least touch on the key aspects of their body and clothing as well as their face, since these are the parts of a person that reader will be most interested in. Continue to use strong descriptive words and challenge yourself to describe them in unique ways. Okay, so here you have to tell the most important thing about person's appearance and about his clothing style, about his face, about her face, and so that reader should be interested in. आप इस तरीके से उसके बारे में बताओ जिसको रीडर बहुत ही इंटरेस्टिंग होके पढ़े. टू डिस्क्राइब अ फेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी के चेहरे के बारे में बताना है, सो व्हाट कुड यू डू, व्हाट कैन यू राइट. हर नोज एंड हर two front teeth were just slightly crooked. Okay, so here the writer is talking about somebody's nose and teeth was slightly crooked. So आप ऐसे words बताओ, like it's not absolutely necessary कि आप, you can also use poetic devices, literary devices to form an image. Okay, like for example, some people say that this car is like dabba. So that means that it is a boxy shape. उसका स्क्वायर जैसा शेप है, उसका डायमेंशन आप कंपेयर करते हो डब्बे से. Sometimes people also compare with somebody. He has very long nose. His nose is like this or that. तो ऐसे आपको कंपैरिजन कर सकते हो आप. Okay, like similes and metaphor you can use. She was constantly pulling her long hair forward and throwing it back again, blinking her bangs out of her eyes like she had no idea how they had gotten there. So it's also, this is also how it is described about the hair. Next point, to describe somebody's body or clothing, you might write, he was a big guy but carried himself like he wanted to apologize for it. So अगर आपको बताना है कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, so इसके बारे में आप ऐसे भी लिख सकते हो. He hunched his shoulders and bent his neck over his phone and wore grey clothes so he could blend into the walls. So this is how also you can mention about somebody's physical appearance. Even the general details you are describing should only be mentioned if they add insight into the person's or character's personality or impression. For example, if their eye color doesn't hint at any deeper part of them, you don't have to include it. So आपको उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ऐसे बताना है जो उनकी पर्सनैलिटी को भी शो कर सके. अगर उनका फिजिकल अपीयरेंस उनकी पर्सनैलिटी से कोई ज़्यादा रिलेट नहीं करता है, then it's not necessary to talk about that. Okay, last is next idea is use figurative language and strong adjectives throughout your paragraphs. So figurative language जैसे कि metaphor, similes and striking descriptive language, इस इन जैसी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो. वाई? बिकॉज दे विल हेल्प यू टू पेंट अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन विदाउट लूजिंग द रीडर्स इंटरेस्ट.
तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि एक कार है जिसको लोग डब्बा कहते हैं, सो दिस कार इज लाइक एज अ डब्बा। व्हाट इज दिस? अभी हमने सिमिली का इस्तेमाल किया। हम्म सिमिली। सो इस तरीके से जब आप करते हो, व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स, सो इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर। ओके, मान लो आपका कोई फ्रेंड किसी सेलिब्रिटी के जैसे लगता है, तो आप उसको पूरा बताने से आप कह सकते हो, यू कैन सिंपली से दैट ही इज़ लाइक शाहरुख खान। शाहरुख खान के जैसा है वो, या कोई भी हीरो हो। सो इट्स वेरी इजी टू फॉर्म एन इमेज व्हेन यू रिलेट टू थिंग्स। ओके, दिस इज हाउ यू टेल। आप ऐसे ही तो अपने घर पे भी बात करते हो कि ये ऐसा लगता है, ये वैसा लगता है। यू गिव एग्जाम्पल इन हिंदी ऑल्सो। सो थोड़ा सा आपको और क्रिएटिव बनना है, एंड यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस पोर्शन। Okay, I hope you will get. So, you want to evoke the spirit and appearance of the person without getting too wordy and strong. So, well chosen language and phrase are the best way to do that. Challenge yourself to include a turn of phrase you have never heard before, or use a word in a new way, or bring out new dimension of your character or person. So, descriptive writing में आप लिखने वाले हो, and you are free to explain, you are free to describe in your own way. ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स रट लो, बहुत सारे प्रैक्टिस करके आप रट लो, नहीं। इट्स योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। आप राइटर हो एंड इट्स योर वे। जब कोई स्टोरी लिखता है वो किसी से पूछता नहीं है, ही और शी राइट्स वट एवर कम्स इन हिज और हर माइंड। वो अपने दिमाग की सोचता है। तो आप जैसे भी वर्ड्स को ट्विस्ट करके लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिमलीज मेटाफर्स यूज़ कर सकते हो, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज, सिमिली, सिमिली का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एस। सो बच्चों, अगर आपको सिमिली के बारे में नहीं पता है, सो व्हाट इज सिमिली? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं लाइक और एज से, सो हम उसको सिमिली कहते हैं। लाइक दिस इज लाइक एज दिस, शी इज एज टॉल एज जिराफ, है ना? दिस इज सिमिली। फॉर एग्जाम्पल, हर बेबीज ईयर्स वर एज टाइनी एज डेलिकेट सी शेल। सो कान का और सी शेल दोनों अलग अलग चीज़ है, बट दोनों को कंपेयर करके ये पता चल रहा है कि कान बहुत छोटे थे। अब मान लो कि कोई बच्चा है, उसने लिखा हर बेबी ईयर्स वर वेरी स्मॉल, और किसी ने लिखा ईयर्स वर एज टाइनी एज डेलिकेट शी सेल्स। तो बच्चों, आप भी फाइट करते हो कि मैम उसको ज़्यादा नंबर क्यों मिला, सर उसको ज़्यादा नंबर क्यों मिला, मुझे कम क्यों मिला। ये दिस इज़ द रीज़न वाई। नाउ आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? मेटाफर, यूजिंग अ वर्ड और अ फ्रेज विद एन ऑब्जेक्ट, एक्शन और पर्सन दैट इट कांट लिटरली अप्लाई टू। सो मेटाफर, मेटाफर क्या होता है कि आप किसी को किसी वर्ड्स में कह दो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से माई यंगर ब्रदर इज रैबिट ऑफ द हाउस। तो इस सेंटेंस से आप क्या कह रहे हो कि आप अपने यंगर ब्रदर को रैबिट से कंपेयर कर रहे हो। सो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ रैबिट? रैबिट की क्या क्वालिटी है? वो बहुत तेज़ भागता है, वो इधर उधर करता रहता है, बहुत नॉटी होता है। तो अगर आपको अपने भाई के बारे में बताना है कि वो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत नॉटी है, बहुत शरारत करता है, यू कैन सिंपली से ही इज द रैबिट ऑफ द हाउस। घर का रैबिट है, वो खरगोश है, सिंपल। सो दिस इज हाउ यू यूज मेटाफोर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्रिकेट टीम में कोई लड़का बहुत अच्छा खेलता है, तो यू कैन से ही इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, मीन्स बेस्ट बैट्समैन। दिस इज हाउ यू यूज मेटाफोर। Example, in class, Mrs. Sherman was an actress. She flew around the room and boomed out each story we read, using different voices and facial expression for every character. Okay, so this is how you do it. Okay, and last point is conclusion. आप जब भी पैराग्राफ लिखते हो, लास्ट में conclusion होना बहुत ज़रूरी है. At the end of a paragraph with a resonant description or conclusion. The end of your paragraph is the part that will stick in your reader's mind. Try to make your last sentence the most interesting one.
either with an unexpected final description or by summarizing the material in a unique, surprising way. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप जब कोई खाना खाते हो तो लास्ट में स्वीट डिश दी जाती है या कुछ बहुत अच्छा दिया जाता है, आप कहीं शादी में जाते हो या किसी के घर जाते हो, बिकॉज लास्ट थिंग इज़ द मोस्ट मेमोरेबल. शुरू शुरू में जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वी डोंट केयर, लास्ट वाला ही याद होता है. So if you are writing a paragraph, last lines are very important lines because those lines are going to be remembered by the reader. So आप उसको लास्ट लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिखने की कोशिश करो. हाउ कैन यू डू दैट? लास्ट सेंटेंस को बहुत इंटरेस्टिंग कर सकते हो, जैसे कि आप समराइज करके अलग से तरीके से लिख सकते हो इन अ सरप्राइजिंग वे. फॉर एग्जाम्पल इज गिवन हियर. I had known Lalu for years, but I had never seen her wear a pair of shoes. In the summer, I had watched the soles of her feet turn black and calloused from the asphalt, which baked so hot under the sun it would let off waves of steam. It had to burn, but she just rose up on her tiptoes and laughed. Wow. आपने डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी लालू को. सो लास्ट में आपने इतनी अच्छी लाइन लिखी दैट रीडर इज गोइंग टू रियली रियली लाइक दिस पैराग्राफ. Next one, in spite of loud voice, the confident set of his shoulders, and the easy smile, Henry was the saddest person I have ever met. So इस तरीके से भी आप एंड कर सकते हो दैट अ पर्सन हैज़ गुड वॉइस एंड कॉन्फिडेंस और दिस, बट लास्ट थिंग क्या है, ही इज़ द सैडेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट. सो दिस इज हाउ यू डू. ओके, सो देर आर टू टिप्स ऑल्सो फॉर यू. लास्ट में एक आपके लिए दो टिप्स सेट्स. ओके, वी आर गोइंग टू अबाउट टू फिनिश दिस लेसन, दिस video. So tips are: do your best friend, show your readers what you are describing through strong sensory language phrases instead of just telling them. So do your best, आप अपना अच्छा से अच्छा करिए. सिंपली बताने से अच्छा है कि आप फ्रेज इस्तेमाल करें, मेटाफर्स इस्तेमाल करें, सिमिलीज इस्तेमाल करें, ईडियम्स इस्तेमाल करें, सो दैट इट्स लाइक, अगर आप सिंपली बताओगे इट्स लाइक नॉर्मल दाल चावल, इज इट? But if you are going to represent it with using metaphors, similes, you are going to display like something very yummy, special. Last point, recheck the essay by reviewing spelling errors, punctuation, grammatical mistakes. Allow somebody to proofread your work. ऑलवेज हमें प्रूफ रीड तो करना बहुत ज़रूरी है. प्रूफ रीड में आप स्पेलिंग चेक करो, पंक्चुएशन चेक करो, ग्रामर मिस्टेक चेक करो, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर एल्डर ब्रदर, सिस्टर, टीचर कि एक बार वो भी रिव्यू कर सकें. ओके, सो दैट्स इट. एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन हैव आइडिया एंड देन रेस्ट यू विल डू होम. ओके, so I hope you understood these things. Watch this video as many times as you can because it is very important if you have to understand. So question number 1, recently a new principal joined your school. Your friend asked you to describe him. Write a description of your new principal. So you have to write a description of a new principal who has joined your school. So answer can be my principal. आप देखिए अच्छे से समझिएगा इसे. My principal can be the heading of your paragraph. So as I have said, पहली पैराग्राफ पहली लाइन से ही इंट्रोडक्शन होना चाहिए. So Mr. Rakesh Chopra, our new principal. So in first line he has introduced the name and our new principal. He is a tall, fair young man. He is tall, fair young man. He has moustache and is very handsome. He has whitish complexion. He is highly qualified, kind and polite. Yet he is strict and disciplinarian. He is punctual and diligent and inspires us to be fit and smart as he has good command over students and punishes habitual latecomers and indisciplined children. He is very kind as
He helps the poor, needy children by distributing books, notebooks, and other stationery material free of cost. He is liked and respected by all. So देखा आपने बच्चों की हाउ ईजली कितने अच्छे से और कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने प्रिंसिपल के बारे में बताया. And this is how you make a good paragraph. Okay. So again, the points which I have given, but I have I have really researched a lot. I have found it okay from different sources. Then I have made this video. Please use all the points which I have told you and practice. Okay. So you have seen this example. Read this example again and again. You can go through some more examples. Okay. So that's it for today. I will give to describe about some person as a homework. Kindly do that also. Okay. So bye and take care of yourself. Stay healthy and complete your syllabus. Enjoy English. English is the easiest subject in your curriculum. Okay, so enjoy English. It's not a burden. It's a good subject. You all should enjoy this subject.